નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear student, how are you all? Standard 2nd, subject English. Today we are going to continue our story, The Magic Porridge Pot. On the previous video we had completed Let's Eat activity. I hope you enjoyed that video. Okay, so now let's do something more in this unit. So first, please open your textbook, page number 153. Are you ready with your marigold? Okay. चलो अब रीड करते हैं. हेडिंग क्या है? It is your friend's birthday. Wow. Just you have to imagine. हाँ, हम पार्टी में नहीं जा रहे थे. हमारे यहाँ पे जो एक्टिविटी है हमें वो कंप्लीट करनी है. Now you have to imagine that it is your friend's birthday. फ्रेंड का बर्थडे है, it means you are so happy, right? Okay. You are presenting a bunch of balloons to her decorate in party. यहाँ पे मैं भी बहुत सारे balloons लेके आई हूँ, right? Okay. The same thing you are giving to your friends. Yes, a bunch of balloons. बहुत सारे balloons का bunch आप उसको बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन के लिए आप उसे दे रहे हो, right? These balloons are your friendship balloons. Wow, friendship balloons. कितना अच्छा साउंड लग रहा है ना. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है. Choose the name of each from the box and color them. Now you can see we have to do a color activity with a friendship balloons. यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे balloons हैं. There are total 7 balloons, right? Let me give the numbers here. आपके बुक में भी जो नंबर्स है, सॉरी जो बलून्स है, उन सारे बलून्स के नंबर दिए गए हैं, राइट? एंड देन सेम थिंग यू कैन सी देयर आर सम ब्लैंक्स. लुक एट हियर व्हिच आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. अभी यहाँ पे है नंबर 1 बलून, ओके? 1 एंड 2 आई एम गिविंग हियर, 3 हियर, 4 5 6 and 7. Okay? Now you can see total 7 balloons I have here. Okay? And same you are giving the gift to your friend. Okay. Then you have to read here. There are some words. चलो read करते हैं. So first word is carry. Carry का मतलब क्या होता है? Yes, ये तो हमारी फ्रेंडशिप में बहुत होता है ना? आप किसी की केयर करते हो, किसी के बहुत ध्यान रखते हो, तो हम क्या कहते हैं? Caring. Your friends are caring, right? Okay. Then is sharing. We love this thing. Sharing तो हमें बहुत पसंद है. Share lunch, share your accessories, your pencil and eraser, and share your book. Yes, we always share things with our friends. Okay. And then kind. Oh wow. Of course, my friend is very kind. बहुत ही दयालु होते हैं. कभी हमारा वर्क नहीं कंप्लीट होता है तो वो कर देते हैं ना. I know this. Okay. Friendly. Yes. And then it's helpful. Yes, helpful. बहुत होते हैं helpful. आप हेल्प करते हैं ना आपके फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प करते हो. And then is forgive. यानी कभी कभी क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है ना. फ्रेंड्स में तो ऐसा होता ही रहता है. लेकिन forgive यानी माफ कर देना. नो प्रॉब्लम. हम कोई बात का इश्यू नहीं बनाते और अभी 2 मिनट पहले झगड़ा किया, 2 मिनट आफ्टर सॉल्व होता है ना ऐसा. फ्रेंडशिप में तो ऐसा हरदम चलता ही रहता है. एंड दैट इज ट्रूथफुल. यस, ट्रूथफुल तो होना ही चाहिए, राइट? ओके. सो यू कैन सी हियर caring, sharing, kind, friendly, helpful, forgive and truthful. Now you have to give the numbers. यहाँ पे जो words आपको दिए गए, this is all about your friends, right? ये आपको जो एक्टिविटी है वो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ करनी है. Okay? You have to give the numbers to these words. आपके लिए आपकी फ्रेंडशिप कितने लेवल पे है? Suppose जैसे कि नंबर 1 पे आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत ही पहले हेल्पफुल है. Always he help you. Always she help you. Then you can give number 1 balloon पे आप helpful लिख सकते हो, right? And then next, now you have to give number 2 balloon. यानी कि आपको
आपकी कोई फ्रेंडशिप है, जैसे कि मेरी कोई फ्रेंड है, तो मैं मेरी फ्रेंड को कौन से वर्ड्स डेडिकेट करूंगी? बाय थ्रू द बलून्स. ओके, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है, दिस यू हैव टू डू एट योर ओन, राइट? क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं, सबके फ्रेंड्स अलग अलग होते हैं, किसी के फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो आप नंबर वाइज अलग अलग फ्रेंडली होते हैं, या फिर हेल्पफुल, फॉरगिव, ट्रूथफुल, शेयरिंग, केयरिंग, कुछ भी, राइट? तो ये आपको एक्सरसाइज अच्छे से करनी है विथ इमेजिन योर फ्रेंड्स. ओके, प्लीज डू इट एंड फिल अप योर टेक्स्ट बुक, राइट? तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करनी है. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स सी. Would you like to tell the class a story about any one of these balloons? Wow! After completing this, ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है? You have to tell the story about your friendship. आपका कोई फ्रेंड है, तो आपके फ्रेंड की और आपकी कोई ब्यूटीफुल सी स्टोरी तो जरूर होती है ना? Yes, you can share your incident too with us, with your friends and with your teacher also, right? I hope you will do this activity also. Suppose I would like to tell you a story one. Please listen carefully. Okay, I had prepared one story about my friend. One day I forgot bringing my lunch box. मैं मेरे स्कूल के टाइम की बात कर रही हूँ. मैं जब स्कूल में जाती थी तब मैं भी लंच बॉक्स लेके जाती थी आपकी तरह, राइट? लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं लंच बॉक्स भूल गई. I had not taken my breakfast either. उस दिन क्या हुआ था, बहुत लेट हो गया था, तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था. And then when the bell rang for our recess time, everyone rushed out to the classroom with their lunch box. अभी जैसे ही बेल रैंग होता है क्लास में, राइट? तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ. रिसेस टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, नाश्ता करने के लिए सब अपना लंच बॉक्स लेके बाहर चले गए. ओके, देन नन ऑफ देम आस्क्ड मी फॉर द लंच. अभी मैं लंच भी भूल गई थी और ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आई थी, तो किसी ने मुझे कुछ पूछा नहीं, सब अपना लंच बॉक्स लेके चले गए. आई वॉज सो सैड, राइट? ये तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ओके, नेक्स्ट इज, इट वॉज ओनली वन बेस्ट फ्रेंड नेम्ड माई फ्रेंड. हर नेम वॉज सीमा. यस, तो मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, राइट? हु केम टू माई सीट एंड सिट एंड ही हेल्प्ड हैप्पीली शेयर हर लंच with me, and that way we say a friend in need is a friend indeed. यानी कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो हमें हर बार हेल्प करते हैं ना हेल्प. यस, दे ऑलवेज हेल्प अस. जैसे ही मैंने मेरे एक इंसिडेंट आपको शेयर किया ना अभी, तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होंगे आपके फ्रेंड्स के साथ, तो आप भी शेयर कर सकते हो और बता सकते हो ना. यस, तो सेम थिंग, जब हमें जरूरत होती है कोई चीज की, हमें बहुत ही जरूरत होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, लंच बॉक्स भी भूल गई, ऑलरेडी आई वॉज वेरी हंग्री, राइट? तो उस टाइम पे मुझे कौन हेल्प की, किसने हेल्प की? यस, माई डियर काइंड फ्रेंड. मेरी जो फ्रेंड थी उसी ने तो मेरी हेल्प की है. तो बच्चों, मैंने तो मेरी स्टोरी शेयर की. नाउ आई होप यू विल आल्सो शेयर योर स्टोरीज विद योर फ्रेंड्स, राइट? ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एक्टिविटी ऑफ दीज बलून्स एंड फ्रेंडशिप्स, नाउ प्लीज टर्न योर पेज नंबर 154. लेट्स रीड. व्हाट इज देयर? देयर इज अ लिटिल स्टोरी. लेट्स एंजॉय इट. यू कैन सी देयर इज अ पिक्चर स्टोरी, लविंग ग्रैंडफादर. This story is about grandfather, right? And here you can see there are pictures. Look at here in your textbook. Yes, there is a one girl and boy. They both are talking about their grandparents, right? Sorry, grandfather. Now let's see what are they discussing. Let's read it. Now the first girl is talking something. Let's read it. Okay. Ever since Grandpa fell down and sprained his arm, he has
गर्ल बात कर रही है कि जब से उसके ग्रैंडपा गिर गए हैं तब से उनके आर्म्स में मोच आ गई है। गिर जाते हैं तो मोच आ जाती, पैरों में मोच आ जाती है या फिर हैंड्स में लाइक, तो ऐसे ही ग्रैंडपा को भी मोच आ गई है, तब से वो चेंज हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ होगा, चलो देखते हैं। नाउ द बॉय इज टॉकिंग समथिंग। ही हैज बिकम वेरी क्वाइट। ओह, वेरी सीरियस मैटर। वो चुप चुप से हो गए हैं, क्वाइट, ज्यादा बात नहीं करना, चुप रहना। He does not even speak to us. Oh, these boys and girls, they are brother and sister. They are talking about her grandfather that he is not talking with them. अब तो उनको चिंता तो होगी कि ग्रैंडफादर उनके साथ बात भी नहीं करे, इतने क्वाइट हो गए। Now the girl is telling, he keeps sleeping the whole day. पूरा दिन सोते रहते हैं। He is very sad. Yes, you can see the picture. वो बहुत sad से रहते हैं, देखिए। Yes, grandpa is sleeping whole day. Now the boy is telling, he does not even go out. वो बाहर भी नहीं जाते हैं। Okay, now the next page. Now the girl is telling, Grandpa loved to go for a walk. He loved to do his exercise. अभी गर्ल क्या कहती है, वो कहती है कि हरदम ग्रैंडपा को तो वॉक पे जाना बहुत पसंद है, एक्सरसाइजेस करना बहुत पसंद है, लेकिन अभी तो वो सोते ही रहते हैं, पूरा दिन सोते रहते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? Now the boy is telling, we must try to make him go for a walk with us and do some exercise in park. अभी बॉय सजेस्ट करता है अपनी सिस्टर को कि हमें कुछ करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंडफादर ऐसे सोते रहते हैं, सैड से हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं। इवन ही इज नॉट टॉकिंग, ही इज नॉट वॉकिंग, नथिंग। तो हमें कुछ करना चाहिए। नाउ ही इज गिविंग द सजेशन कि हमें उनको कैसे भी करके पार्क तक लेके जाना चाहिए, जिसके कारण वो एक्सरसाइज कर सके। वी हैव टू हेल्प हिम, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नाउ लुक एट द नंबर 5 पिक्चर हियर, दिस वन। ओके, नाउ you can see the girl is telling, I can see grandpa's friends, let us talk to them. अभी जैसे ही पार्क में जाते हैं तो गर्ल ने एक बेंच पे उनके ग्रैंडपा के फ्रेंड्स को देखा। 3 फ्रेंड्स है ना, यस। तो उसने सोचा कि चलो हम जाके वहां पे बात करते हैं। The boy is telling, Grandpa, your friends are there. Talk to them while we play. They have missed you. अभी यहाँ पे जो ब्रदर है, जो बॉय है, वो बहुत ही क्लेवर है। वो क्या करता है, एक आइडिया करता है। अपने ग्रैंडपा को कहता है कि ग्रैंडपा एक काम कीजिए, आपके वहाँ पे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ना, उनके साथ थोड़ी बातें कीजिए, तब तक हम खेलते हैं। वो आप सबको बहुत मिस कर रहे थे, तो जाइए और उनके साथ बातें कीजिए। तो ग्रैंडपा क्या करते हैं, वहां पे चले जाते हैं, राइट। नाउ लुक एट द 6th पिक्चर, लास्ट पिक्चर, लुक एट हियर। ओके, नाउ आफ्टर टॉकिंग हर ग्रैंडफादर अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं। थोड़ी सी बातें करने से क्या हो जाता है, बाहर की फ्रेश हवा ले सकते हैं, फ्रेंड्स को मिल सकते हैं, और उनके ग्रैंडपा जो पास है, हम भी कहीं पे पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो कुछ अच्छा फील करते हैं ना। तो सेम एज इट इज यहाँ पे जो ग्रैंडपा थे, उन्होंने अपने ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर के कारण उनके फ्रेंड्स तक पहुंचे पार्क में और उनके साथ बातें की, तो उनको थोड़ा अच्छा फील होने लगा। नाउ लेट्स सी नंबर 6। थैंक यू माय चिल्ड्रन for taking me out in the fresh air.
अभी ग्रैंडफादर बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं और चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ तक बाहर लेके आने के लिए, और मैं यहाँ पे फ्रेश एयर ले सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। It's been a long time I have been with my friends or for walk. बहुत टाइम से मैं मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं मिला था और मैं वॉक पे भी नहीं आया था, लेकिन आज आपके कारण चिल्ड्रंस, आप दोनों के कारण मैं मेरे फ्रेंड से मिल सका हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, हैप्पी फीलिंग। अपने चिल्ड्रन को थैंक यू कहते हैं और हैप्पी तीनों के तीनों घर जाते हैं, राइट? ओके, आई होप चिल्ड्रंस यू एंजॉय दिस स्टोरी। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोरी वी हैव टू कंप्लीट अवर लेट्स रीड एक्टिविटी। दिस इज रिलेटेड टू दिस स्टोरी। हमने जो ये पिक्चर स्टोरी कंप्लीट की है, ये वैसे तो पिक्चर स्टोरी आपको रीड करनी थी 3 स्टूडेंट्स को। रीड दिस पिक्चर स्टोरी अलाउड विथ 3 स्टूडेंट्स, यू हैव टू एक्ट दिस स्टोरी। लेकिन अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया है, जब आप स्कूल आओगे तब हम ऐसे कैरेक्टर वाइज, एक ब्रदर बनेगा, एक सिस्टर बनेगा, एक ग्रैंडफादर बनेंगे और हम ये कैरेक्टर प्ले करेंगे, राइट? बहुत मजा आएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी वी हैव टू डू रीडिंग इज फन। सो नाउ लेट्स read and write. We have to write also, okay? Let's start it. It's fun. Take the right answer. It means first we have to read the question here. Now let's read it. Grandfather sprained his great-grandfather को कहाँ पे पहुँचाई थी? Yes. After completing our explanation of this story, you can give the answer quickly, right? Yes, उनको आर्म्स में हो जाई थी ना, यस, स्प्रेन हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ऑप्शन है। ऑप्शन ए लेग, ऑप्शन बी बैक एंड ऑप्शन सी आर्म। इट मींस आवर राइट ऑप्शन इज आर्म्स। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू टिक हियर लाइक दिस। ओके, आप भी ऐसे ही करते जाना मेरे साथ। ओके, नाउ नंबर 2, ग्रैंडफादर लव। व्हाट डू यू नो दैट ग्रैंडफादर को क्या पसंद था, क्या लव करते थे? डू ही लव ईटिंग, क्या उनको खाना पसंद था? ऑप्शन बी वॉकिंग, क्या उनको वॉकिंग पसंद था? ऑप्शन सी स्लीपिंग, या फिर उनको सोना पसंद था? व्हाट ही लव्ड मोस्ट, उसे क्या ज्यादा पसंद था ग्रैंडफादर को? यस, ही लव्स वॉकिंग, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा जो ग्रैंडफादर के ग्रैंडचिल्ड्रन थे वो क्या कह रहे थे कि ग्रैंडफादर को अक्सर वॉकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं यस, ग्रैंडफादर लव वॉकिंग। सो यू हैव टू टेक हियर ऑप्शन बी, राइट? ओके, नंबर 3, लेट्स रीड इट। ग्रैंडफादर मिस्ड हिज, व्हाट ही मिस्ड? फूड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बुक्स, ऑप्शन सी एक्सरसाइज। क्योंकि आफ्टर स्प्रेन्ड हिज आर्म वो पूरा दिन सोते रहते थे, राइट? तो वो सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे थे? यस, ही वाज मिसिंग हिज एक्सरसाइज। क्योंकि जो ग्रैंडचिल्ड्रन थे वो क्या बातें कर रहे थे कि उनको वॉकिंग पसंद है एंड एक्सरसाइज पसंद है। सो वी विल राइट टिक हियर एक्सरसाइज सी। इट मींस ऑप्शन सी एक्सरसाइज। चलो एक बार रीड कर लेते हैं। ग्रैंडफादर स्प्रेन्ड हिज आर्म्स। ओके, नंबर 2, ग्रैंडफादर लव्ड वॉकिंग। यस, ग्रैंडफादर मिस्ड हिज एक्सरसाइज। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर number 1, 2 and 3. Please complete this exercise in your textbook. Now let's start something more in this here. Now you can see here is next activity is before grandfather fell. यानी कि जो वो गिरे थे उससे पहले वो क्या करते थे? And then next is after he fell. यानी कि वो जब गिर गए उसके बाद उनकी हालत क्या थी, राइट? चलो देखते हैं, रीड करते जाएंगे और यहाँ पे आफ्टर ही फेल की ब्लैंक्स भी कंप्लीट करते जाएंगे, राइट?
Okay, so first we will read before grandfather fell. One sentence we will complete it, right? And write here answer also. So let's do it. So first sentence is grandfather used to go for walk. तो वो जब गिरे नहीं थे तब उनको वॉक करने जाने का बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आफ्टर ही फेल, गिरने के बाद क्या हो रहा था? Now he blank. It means now he is not going for walk. Now he is sleeps all day. यानी कि वो पूरा दिन सोते रहते थे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे sleeps all days. Okay? Full stop. पहले तो वो वॉकिंग करने के लिए जाते थे, लेकिन आफ्टर ही इंजरिंग हिज आर्म, then he don't go for a walk. Now second sentence is grandfather used to talk. पहले तो वो बहुत बातें करते थे, लेकिन अब साइलेंट, किसी के साथ बात नहीं करते हैं, राइट? Now he is silent. S-I-L-E-N-T, silent, full stop. Right? Now number 3 sentence. Grandfather met many friends. पहले तो उनके कितने सारे फ्रेंड्स को मिलने के लिए गार्डन पार्क जाते थे ना? Yes, but now after he fell, now he does not go for a walk outside. वॉक के लिए ही नहीं जाते हैं, तो फिर फ्रेंड से कैसे मिलेंगे? Let's write it. Not go for a walk outside. Right? Okay. Now he does not go for a walk outside. तो बाहर ही नहीं जाते हैं, right? Okay. So now students, please complete these blanks. After he fell, यानी कि ग्रैंडफादर गिरने के बाद क्या करते थे? उनकी टोटली एक्टिविटी चेंज हो जाती है ना, क्योंकि जब वो गिरे नहीं थे तो उनकी एक्टिविटी अलग थी, लेकिन अब गिरने के बाद अलग है. और किसने हेल्प की इन एक्टिविटीज को चेंज करने में? यस, दोनों चिल्ड्रंस ने हेल्प की ना ग्रैंडफादर को. यस, वेरी गुड. तो ऐसे ही हमें भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए. वेरी गुड. So please complete these blanks in your textbook. Now let's practice. Now you have to practice cursive. Look at here, this one with good handwriting at your homework. Please complete it and practice in 4 line. आपको 4 line में कैसे लिखना है? Please trace this and practice cursive sentences. Okay. Now dear students, today we had completed our unit 9 story, The Magic Porridge Pot. I hope you enjoyed all the videos. Thank you. Thank you for joining us.